हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यस टेक्नोलॉजीज़। आज तक हमने UPS के पिलर्स देखे, एब्स्ट्रैक्शन देखा, इनहेरिटेंस विद टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म विद टाइप्स, रियल टाइम एग्जांपल, और आज हम देखने जा रहे हैं इंटरफेस। सो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके हैं। एज आई सेड इन लास्ट ट्यूटोरियल, वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन टू वेज, यूजिंग abstract class and using interface also you can achieve abstraction in a Java. So in a last tutorial we learn about abstract class. तो आज हम देखने जा रहे हैं interface. So what is the interface first of all? So interface is nothing but blueprint of your class which contains only abstract method and static final variable. तो आप लोगों को पता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स ऐसे मेथड जिसकी हम बॉडी डिफाइन नहीं करते. एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड्स विच वी हैव टू डिक्लेयर इन अ क्लास ओनली. वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू डिफाइन दैट मेथड. ओके, सो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो होते हैं कंपल्सरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. दैट्स मीन वी हैव टू डिक्लेयर दैट मेथड ओनली इन अ इंटरफेस. एंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं स्टैटिक फाइनल. दैट्स मीन कॉन्स्टेंट वेरिएबल वी हैव टू डिक्लेयर इन ए इंटरफेस. देन अगर आपको इंटरफेस क्रिएट करना है तो यू हैव टू यूज इंटरफेस कीवर्ड टू डिक्लेयर interface. After that, one important thing is if you are declaring any abstract method, that's mean you are just providing method name, but you are not providing any definition, any body of that method in an interface. Then you have to implement that method somewhere, right? That's mean आपको एक क्लास बनाना होगा एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट्स योर इंटरफेस इन दैट क्लास. दैट्स मीन इंटरफेस के अंदर जो आप मेथड्स डिक्लेयर करने वाले हो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. यू हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड इन योर क्लास. दैट्स मीन क्लास implements keyword and name of your interface. In this way you have to provide implementation of your method in a class. Okay, then the very important thing is we cannot create object of our interface, but we can create reference. We can create reference. Okay, in a interface is a relationship you can achieve like inheritance. Then in last tutorial I told you that we cannot achieve multiple inheritance in a Java, but if you want to achieve still you can using interface. So we can achieve or we can create multiple inheritance in a Java using interface. So I am just telling you what is the interface actually, how to declare interface, how to implement interface in a class, what is the relationship you can achieve, and how to use that interface in a Java. Okay, so in this way we learn about the some important point about interface. Now take one real time example. Suppose remote. Okay, in a remote there are a lot of buttons, but the main button is on off button. Okay, so
when we are clicking on a on off button, at the same time your TV will get start, right? Your TV will get start. That's mean our functionality is declared in a remote, but actual definition of that functionality is defined in a TV. Okay, what is happening here? रिमोट में ऑन ऑफ बटन की फंक्शनैलिटी जो होती है वो जस्ट डिक्लेयर की होती है डेवलपर ने. जब हम ऑन ऑफ बटन पे क्लिक करते हैं, एट द सेम टाइम टीवी जो है हमारा, या कोई भी प्रोजेक्टर ले लो आप, या फिर एनी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ऑन ऑफ फंक्शन जो है वो जस्ट रिमोट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो टीवी या फिर प्रोजेक्टर के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है. दैट्स मीन ये जो रिमोट है, ये रिमोट एज ए इंटरफेस वर्क कर रहा है, और इस इंटरफेस के अंदर ऑन ऑफ ये जो बटन है ये एज ए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वर्क कर रहा है, और टीवी एंड प्रोजेक्टर जो है वो एज ए क्लास वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर हमें ये ऑन ऑफ फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर इंटरफेस. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल like car. Okay, so car has engine, tire, 4 tire actually, then 2 seat in a front, then gear also. Okay, so our car is nothing but what? Interface. Okay, now Maruti, when we are declaring any class as a Maruti, then इस मारुति क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो कार इंटरफेस के फंक्शंस है जैसे कि इंजन, व्हील्स, देन गियर, ये जो फंक्शंस है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, एज पर मारुति क्लास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे. As per requirement of a Maruti class, we will implement all this abstract function which is declared in a car interface. Okay, so the same thing I am telling you again and again, that is the interface is nothing but what? It is the collection of abstract method and the static final variable only. और जो abstract method होते हैं, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको प्रोवाइड करना होता है क्लास में. ओके, एंड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए यू हैव टू यूज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर इंटरफेस. नाउ वी विल टेक practical example. So here I am creating one Java project, that is the interface, or you can take interface demo. In this project I am going to create one interface. Now check how I am creating my interface. Just right click on your package, new keyword, new, and here you can see one option, that is the interface option. Now I am giving my interface name like remote. Okay, in this interface I am going to create my abstract method. Let's assume that I'm just declaring one function, suppose on off function, and I'm trying to provide some definition of that function. So JVM providing me some error here. Okay, what is saying, abstract method do not specify a body. Okay, बट मैंने यहाँ तो abstract कीवर्ड लिखा नहीं है. देन
ये एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है मुझे, अभी आप देख सकते हो स्टिल ये मुझे यहाँ पर एरर शो कर रहा है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। दैट्स मीन इंटरफेस में जो फंक्शंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जावा 8 से आपको एक फीचर मिला है, दैट इज़ द फीचर इज़ नथिंग बट, अगर आपने कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं किया तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जावा 8 वो फंक्शन एज ए एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर करता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है हमें, दैट इज़ मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ओके, सो ये जो ऑन ऑफ फंक्शन है जो आपने इंटरफेस में डिक्लेयर किया है ये कंपलसरी है एब्स्ट्रैक्ट। जावा 9 से तो आपको और एक फीचर ऐड हुआ है कि आप इंटरफेस में प्राइवेट फंक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ वेरिएबल शुड बी स्टैटिक फाइनल। ओके, सो स्टैटिक फाइनल मतलब हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक फाइनल मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आपने ये कीवर्ड्स नहीं भी लिखे यहाँ तब भी JVM इस वेरिएबल को एज अ स्टैटिक एंड फाइनल ही अज्यूम करेगा बिकॉज ऑफ JDK 8 वर्जन। ओके, बट फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिस आई एम सजेस्टिंग यू write proper definition of your abstract method and static final variable. Okay, so मेरा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई क्लास बिकॉज इन दिस क्लास आई हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर माई ऑन ऑफ फंक्शन। सो माई क्लास नेम इज ए TV. Now in this class I want to implement my interface, so you can implement using implements keyword and then name of your interface. So my interface name is a remote. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो कि TV क्लास पे एक एरर ऑकवर्ड हो रही है। सो ये एरर है द टाइप TV मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिमोट ऑन ऑफ मेथड। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमें वो क्लास के अंदर कंपलसरी इम्प्लीमेंट करनी ही होती है। इन अ सेम वे इंटरफेस में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हमें कंपलसरी TV क्लास में इम्प्लीमेंट करनी ही होगी। और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी इंटरफेस की मेथड इन ए क्लास, यू हैव टू प्रोवाइड हेयर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देन आपके फंक्शन का नाम, दैट इज द ऑन ऑफ फंक्शन। सी ऑन ऑफ फंक्शन। नाउ यू कैन चेक, यहाँ पर आपकी एरर रिमूव हो चुकी है। एंड इन दिस फंक्शन एज पर योर क्लास यू कैन प्रोवाइड एनी इम्प्लीमेंटेशन। आई एम जस्ट सिंपली प्रिंटिंग इट इज remote interface method. Okay, and this is the static variable, right? Static final variable. So I am just printing this variable in my main method. So here I am creating object of my TV class because we cannot create object of a remote interface. Let's check what will happen. So you can see यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप रिमोट। दैट्स मीन हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो इस तरीके से मैं मेरे ऑन ऑफ फंक्शन को कॉल कर रही हूँ एंड आई एम प्रिंटिंग दैट प्राइस वेरिएबल जो इंटरफेस के अंदर मौजूद है एंड वो स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, सो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कैसे किया जाता है? यू नो दैट यूजिंग क्लास नेम। सो क्लास का नाम है TV डॉट प्राइस। इन दिस वे यू कैन एक्सेस एनी स्टैटिक डेटा मेंबर यूजिंग क्लास नेम। ओके, सो अभी मैं अपना कोड रन कर रही हूँ। यू कैन चेक माई कंसोल, यहाँ पर आपका फाइनल आउटपुट आ चुका है। इट इज़ अ रिमोट इंटरफेस मेथड and price of remote that is 100.
सो इस तरीके से जावा में इंटरफेस आप डिक्लेयर कर सकते हो. इन दिस इंटरफेस यू हैव टू डिक्लेयर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम जावा 8. बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही अज्यूम की जाती है एंड वेरिएबल जो है वो स्टैटिक फाइनल ही अज्यूम की जाती है. सो इफ यू डोंट वांट टू प्रोवाइड दिस कीवर्ड्स you can remove it. Okay, then इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं एंड जब हम इंटरफेस का कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास में तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज यहाँ पर आपको JVM एरर क्रिएट करके देगा, दैट इज़ कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम रिमोट. दैट्स वाई आपको यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर जो है, विजिबिलिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वो हमेशा पब्लिक रखनी होती है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ योर TV क्लास एंड यू कैन एक्सेस योर इंटरफेस मेथड. देन जो मेथड स्टैटिक होते हैं, जो वेरिएबल स्टैटिक होते हैं, यू कैन एक्सेस दैट वेरिएबल एंड मेथड यूजिंग क्लास नेम ओनली. सो ये था आज का सेशन. In next session, we will learn about one interview question, that is how to achieve multiple inheritance in a Java.